So in this class we will be continuing with our new topic, that is solution of the linear equations. Okay, now today we will learn about how we can solve the linear equation. Solve कैसे करना है, ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में. Solutions of linear equations. Okay, this thing we are going to study. Now for solving a linear equation, देखो जब भी हम linear equations को solve करेंगे ना, we are having different methods. हमारे पास अलग अलग methods होते हैं. The first one is what? Graphical. Okay, this is the first method, graphical method. Okay, then second one is our elimination. Then third one, substitution. Okay, then fourth one is cross multiplication. Cross multiplication. Okay, these four methods we will be using for solving our linear equations. Linear equations को solve करने के लिए ना हम ये चार methods use करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. One by one I will discuss all the methods. देखो पेपर में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा that you have to solve by this method, है ना, by using a particular method. ऐसा कभी नहीं होता है कि वो लिख के देते हैं. सो इन दैट केस क्या करना है, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड जो तुम लोगों को सबसे अच्छी तरह से आता है ना. यू विल बी यूजिंग दैट वन ओनली जो तुम्हें आता है. ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को ग्राफिकली करना है या एलिमिनेशन करना है या सब्सटीट्यूशन करना है, कोई भी कर सकते हो, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्राफिकल मेथड. हाँ, ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं पहले. तो देखो ग्राफिकल मेथड में क्या है, सपोज मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है x plus y equals to 5. Okay, now one thing also I told you that whenever you are solving a linear equation, जब भी तुम लोग linear equations को solve करोगे, at least you should have a pair. तुम्हारे पास pair होना चाहिए. That means कम से कम दो linear equation होनी चाहिए. So I am taking 2 x plus y equals to 5 and then x minus y equal to 7. These two equations I am taking. Suppose for example you can take any, है ना, कोई भी ले सकते हैं. So I am using this graphical method first. Now for using graphical method for both the equation, देखो this is your first equation, okay, then this is your second equation. For both the equation try to find at least 3 coordinates. Coordinates you know that value of x and y that we can plot on a graph, है ना, वही उसको coordinate बोलते हैं. So first equation is what? x plus y equal to 5. So from that one I can keep x equal to 5 minus y. मैं उसमें से बना सकता हूँ ना x equal to 5 minus y. So now I'll make a table for the first equation. Okay, this is the table. I will be finding 3 values. Now I will put I'll keep x, y. Now when I will be putting the value of y, y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ. I am putting y equal to 0. Then according to y equal to 0, what value of x I am having? 5. Okay. Then I am putting y equal to 1. y की वैल्यू 1 पुट किया मैंने. Then what value of x I am getting? 4. Okay. Similarly y equal to 2. Then I am getting x equal to 3. Okay, so this is for the first equation I have done. First वाला मैंने complete कर दिया, ठीक है. अब second वाला जो है x equal to क्या बनेगा, second वाला 7 plus y. Okay, this will be 7 plus y. So now I will be making another table. एक और table यहाँ पे बना देते हैं. So this will be again we will put some values x, y. Okay. So if I am putting y equals to 0, then what I am getting? X equal to 7 plus 0, 7. Okay, then 1 I am putting, then 7 plus 1, 8. Okay, then 2. So 7 plus 2 it will be 9. Okay, so these are some certain values I am getting for x and y. x और y की देखो मैंने दोनों
जो मेरे पास दो इक्वेशंस थी, आई हैव यूज्ड दीज टू इक्वेशंस टू फाइंड सम कोऑर्डिनेट्स। मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए एंड दिस इज वेरी सिंपल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, अपने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर देंगे एज यूजुअल जैसे हम प्लॉट करते हैं ना। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5,0, तो मैं यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करने वाला हूँ ये सब। तो एक बार इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। हाँ दिस वन, नाउ आई कैन पुट। सो फर्स्ट पॉइंट that we were having is 5,0. The value of x is 5 and y is 0. So I will be putting somewhere here this a point. This is a, that is 5,0. In between 4 and 6 you can see, you can write 1 2 3 4 also ना, तुम लोग 1 2 3 4 भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो हमारा यहाँ पे 4,1, ये वाला सेकेंड, ठीक है 4,1. सो आई विल बी पुटिंग इट 4,1. So it will be 4,1 somewhere here. That one. This B point is representing 4,1. देखो तुम लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हो, it is 5.01 and 4. तो इसको जो है ना मैं यहाँ से करेक्ट कर देता हूँ बिल्कुल, and this one also. You can do, if you will be using sometime GeoGebra and all na, then you will be able to learn. See 5,0, 4,1. Then next point is what I'm using some approximations here. Then next is 3,2. So 3,2. So this is our third point, 3,2. Okay. So now what to do? We are having all these 3 points ना, 3 points हैं हमारे पास, तो हम इनको यूज करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली ना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनको यूज करके। See this is the line I am drawing here. Just a minute. Yes, this one. This is this line we will be drawing. हाँ, दिस इज़ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट ए बी सी। जो हमने ए बी सी पॉइंट प्लॉट किया था ना, उससे वो लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ दिस वन। देन नेक्स्ट इज व्हाट, हमारे पास जो दूसरे लाइन के दूसरी इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 7,0, 8,1, 9,2, वी विल प्लॉट दीज वन ऑल्सो। सो फर्स्ट इज 7,0. So 7,0, it will be somewhere here, 7,0. Just wait, I have to put point. Okay, this is point 7,0. Okay, then next one is 8,1 and 9,2. 8,1, this is 8,1 and that next one is 9,2. So this one is 9,2. So these are 3 points we are having. Again we will draw a line through these points. इनसे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया। अच्छा अभी देखो हमारे पास ना जो ये लाइन आई है, जो अभी हमने लाइन ड्रॉ किया है और जो पहले वाली लाइन, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। You can see this is the point of intersection. This I'll take a point and name it. Just a minute, it is not showing somewhere. This point you can see here, this point H. This is the point of intersection for these two lines. This point H is the point of intersection. So that means what? The coordinates of this point H is what? The value of x and y. यही हमारे पास x और y की वैल्यू है। And you can see x is what? Somewhere 6 and y is what? 1. So है ना, हाँ -1 sorry. So we are getting from the graph, we are getting x equal to 6 and y equal to -1. Okay. So this is how you can calculate
द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से ऐसे कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू प्लॉट योर पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट कम से कम ले लेना, उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। एंड देन इफ़ यू आर गेटिंग अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम दिस पॉइंट आर द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। जो भी तुम्हें एक्स और वाई चाहिए उसकी वैल्यू आएगी वो। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफिकल मेथड को प्रीफर क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम्हारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू मीन्स लाइक x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -1, एग्जैक्ट आ रहा है तो ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि x की वैल्यू आ रही है 3.4 या 3.5, देन उस केस में क्या होगा ना, ग्राफिकल मेथड से तुम लोग जो है बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे। एग्जैक्टली तुम लोगों को पता नहीं लगेगा कि क्या ये 3.4 है या 3.5 है जहाँ पे तुम्हारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ना ग्राफिकल मेथड को यूज करना, बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, अगर वो लिख के देते हैं ना कि दैट यू हैव टू यूज ग्राफिकल मेथड, देन ओनली यू विल बी यूजिंग। वरना सेकेंड मेथड पे आ जाओ, एलिमिनेशन। ये होता है सबसे अच्छा मेथड, सबसे ईजी भी है ये, ठीक है। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड को ही। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। ठीक है, मैंने देखो एक इक्वेशन ले ली है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है ना, जब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन तुम लोगों को खुद ही समझ आ रहा होगा, एलिमिनेट मीन्स एक को बिल्कुल रिमूव कर देना है। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है, जैसे हम कोई गेम भी खेलते हैं ना, इवन इन पबजी एंड ऑल, व्हाट वी डू, जो फ्री फायर पबजी, हम क्या करते हैं, अपने जो दूसरे जिनके साथ हम खेल रहे होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं ना, जो भी हमारे अपोजिट होते हैं मेंबर्स। तो वही चीज़ है, इसमें एलिमिनेट करना होता है। तो देखो अब एलिमिनेट करने के लिए क्या है, एक और चीज़, बिफोर स्टार्टिंग टू सोल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन और एनी मेथड, अगर तुम सोल्व करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले उससे पहले क्या करना है, चेक कर लो कि उसका सॉल्यूशन आता भी है या नहीं। a1/a2 को चेक करो, a1/a2 क्या आ रहा है तुम्हारा, दैट इज़ 2/3, 2/3। ठीक है, ये तो हर मेथड में करना है, इसको तो ज़रूर करना है, क्योंकि अगर तुम लोगों को पता ही नहीं होगा कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे। b1/b2 को चेक कर लो, b1/b2 क्या आ रहे हैं, 1/-2। सो दैट मीन्स व्हाट, a1/a2 एंड b1/b2 आर नॉट इक्वल, है ना, अनइक्वल हैं वो। तो दैट मीन्स वी विल गेट अ सॉल्यूशन, हमारे पास आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि अनइक्वल का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन में हम आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसमें हम आगे सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है -2। ठीक है, अब तुम लोगों को ना सेम कोफिशिएंट करना है, चाहे तो तुम x वाले को सेम कर लो या तुम y वाले को सेम कर लो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, यू कैन डू एनी वन। बस ध्यान से सुनना, जब तुम इक्वेशन को देख रहे हो, यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम कोफिशिएंट कर लेना है। ठीक है, साइन कैन बी डिफरेंट, साइन प्लस माइनस हो सकता है, बट द कोफिशिएंट, द वैल्यू, okay, the value should be same. Like if I am having here 1, the coefficient of y is 1, this one you can see, because y is not having any coefficient, so we will consider 1 ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे 2 है y का कोफिशिएंट, तो मैं क्या करूँगा ना, ऊपर वाली इस इक्वेशन को I will multiply it with 2।
नाउ चेक, 2 2 जा 4x, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सर हमें तो y का ही कोफिशिएंट सेम करना था तो मैं सिर्फ y से मल्टीप्लाई करूँगा। नो, यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन पूरी को मल्टीप्लाई करना है। सो देखो 2 2 जा 4x, देन 2 1 जा 2y, देन 2 6 जा 12, ओके 2 6 जा 12। सो देखो मैंने इस 2 से क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑलरेडी उसमें तो 2y है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, देन माइनस 2y एंड देन इक्वल टू 11। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ईजिली सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है? देखो यहाँ पे है प्लस 2y, ये है माइनस 2y, कैंसिल आउट हो गया। प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया ना, प्लस माइनस। नाउ 4x प्लस 3x, हाउ मच वी आर गेटिंग? 7x। 4x प्लस 3x 7x, एंड देन 12 प्लस 11 इट विल बी 23। okay, so x is how much? X is how much? It is 23 by 7, 23 by 7. Okay, so this is why, that's why I was telling you not to use graphical method, क्योंकि देखो graphical method में तुम ऐसा आंसर फाइंड आउट कर देते क्या 23 by 7? नहीं हो पाता ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट्स वाई यू विल बी यूजिंग दिस एलिमिनेशन इज़ द सिंपलेस्ट वन ऑल्सो, ये सबसे सिंपल भी होता है। देखो अभी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x वैल्यू क्या है 23 by 7। नाउ चेक योर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी तुम्हारी? 2x प्लस y इक्वल टू 6, 2x प्लस y इक्वल टू 6, दिस इज योर, हाँ सॉरी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस y इक्वल टू 6। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसमें पुट कर दो x की जगह पे 23 by 7। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 23 by 7 प्लस y इक्वल टू 6। ओके, सो इट विल बी 23 into 2, it will be 46 by 7, okay, plus y equal to 6. Okay, then y will be equal to what? Now y will be equal to 6 minus 46 by 7। ये 46 by 7 इधर आके माइनस हो जाएगा ना। सो नाउ यू कैन टेक LCM ऑल्सो। सो 7 1 जा 7, दिस इज योर LCM। नाउ 7 6 जा 42 एंड माइनस 46. So y is how much you are getting? minus 4 by minus 4 upon 7. So this is the value of y and x you are getting. See, x was your 23 by 7, this was the value of x, and y is minus 4 by 7. So this is the value of y you are getting. So बेसिकली एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन में क्या करना है? पहले कोफिशिएंट को सेम करना है, देन वट एवर इज कैंसलिंग आउट कैंसिल आउट करो। उसके बाद क्या करना है? एक वैल्यू जो भी आएगी उसको किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड द अदर वैल्यू। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया सपोज ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 8. Okay, these two equations I am taking, 2x plus 3y equal to 6 and 3x plus 2y equal to 8. तो अब देखो इसमें क्या करना है तुम लोग ना, पहले तो वही a1 a2 चेक करोगे। इसमें ना क्लियरली ही पता लग रहा है, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो a1 अपॉन a2 करेंगे 2/3 आएगा, और b1 अपॉन b2 करेंगे तो 3/2। दिस इज़ अनइक्वल ना, तो डायरेक्टली वी कैन मूव टू द सॉल्विंग टर्म। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली हमारी है सेकेंड इक्वेशन।
अब क्या करना है, देखो कोफिशिएंट सेम करना है, आइदर x के कोफिशिएंट्स को सेम करो या फिर y वाले कोफिशिएंट को सेम करो, किसी को भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे x वालों को सेम कर रहा हूँ। देखो ये क्या है 2x और ये क्या है 3x। तो अब सेम करने के लिए ना इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्यों, 3 2 जा 6 बन जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, 2 3 जा 6। देखो कई बार ऐसा होगा कि तुम लोगों को ना दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने लास्ट वाला जब क्वेश्चन किया था तो सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, बट सम टाइम इट विल हैपन कि दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ करना पड़ा मुझे, वरना तो सेम नहीं होता। देखो अब करेंगे इसको, 3 2 जा 6x, देन प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 6 जा 18, देन इस वाले को करेंगे 2 3 जा 6x। अगेन आई एम सेइंग पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, सर इसको सेम कर दिया उसके बाद इसको सेम लिख देते हैं 2/8, ऐसे नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई फुल इक्वेशन से करना है कंप्लीट। 2 2 जा 4y, देन 2 8 जा 16, किया मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो जब हमने कोफिशिएंट सेम कर दिया, ये वाला भी 6x है, ये वाला भी 6x है, दोनों सेम कर चुके हैं हम, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना साइन दोनों के सेम है, और दोनों साइन सेम है तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर साइन सेम है तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम साइन चेंज करते हैं, वी विल चेंज द साइन। सो आई एम चेंजिंग द फर्स्ट साइन। यहाँ पे देखो ये क्या है 6x, नीचे वाली इक्वेशन का चेंज करेंगे, ऊपर वाले का कुछ नहीं करना है। नीचे वाली इक्वेशन में ये 6x क्या है, इधर प्लस है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा इधर माइनस, ठीक है। अब क्योंकि अब क्या होगा, मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और फिर जब हम साइन चेंज कर रहे हैं तो कंप्लीट इक्वेशन का साइन चेंज करना है। ये प्लस 4y है तो ये प्लस 4y क्या बन जाएगा, अब इट विल बी माइनस 4y। दिस इज प्लस 16 ना, इट विल बी माइनस 16। सो नाउ वी कैन कैंसिल आउट। देखो 6x टू 6x क्या हो गया, कैंसिल, 0। 9 माइनस 4y इट विल बी 5y इक्वल्स टू 18 माइनस 16 हाउ मच, 2। So y is equal to how much, y is equal to 2/5। So this is the value of y we are getting, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, एक वैल्यू आ गई है तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लूँ। मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठा रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को पुट करूँगा इधर, putting the value of y, so it will be 2x plus 3y, that means 3 multiplied by 2/5 equal to 6, and 2x प्लस, देखो ये 3 2 जा 6 बन जाएगा, 6/5, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 6/5, समझ आ रहा है ना, ये 6/5 इधर आके माइनस हुआ है, ये प्लस था। सो 2x विल बी इक्वल टू, नाउ टेक द एलसीएम, सो 5 1 जा 5 एंड देन 5 6 जा 30 माइनस 6, सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 24/5 एंड देन वी विल कैंसिल बाय 2, वो जो 2 उधर x के साथ मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, सो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर गेटिंग x इक्वल टू 12/5। सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग एनी इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ट्राई टू सॉल्व इट। ये है 4x माइनस 5y इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू
7. Okay, try to solve this equation and write answer in chat box. अच्छा देखो, अब इससे आगे जो है ना हमारा एक और मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब इसमें क्या है सब्स्टिट्यूशन में, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है बट थोड़ा यूज कम ही करना, ठीक है. क्यों यूज कम करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, वो भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ. पहले हम सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है. एक इक्वेशन लेता हूँ मैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड एक इक्वेशन लिया मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. अच्छा, सबसे पहले तो वही a1 a2 b1 b2 अनइक्वल है ना, अनइक्वल है, देखने से पता लग रहा है, सो विल नॉट चेक. अब इसको जब सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. टेक एनी वन ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को उठा लो, फर्स्ट को उठा लो या सेकंड को उठा लो. देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सेकंड इक्वेशन को ले रहा हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. ओके, मैंने सेकंड इक्वेशन को लिया है. यू कैन टेक एनी वन, फर्स्ट को भी ले सकते हो, सेकंड को भी. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इन टर्म्स ऑफ द अदर. दैट मीन्स व्हाट, y को मैं अकेला इधर ही रखूँगा, बाकी जो कुछ भी है ना उसको सबको किधर लेके जाऊँगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड में 4, और इधर आके ये 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x. समझ आ रहे हैं. देखो मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल को ना अकेला कर देना है, ऑल अलोन इन द लेफ्ट साइड, बाकी सब कुछ राइट साइड में आ जाएगा. दैट मीन्स आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मेरे पास है, कहाँ कितनी है, 4 माइनस 2x. दिस इज द वैल्यू ऑफ y आई एम गेटिंग फ्रॉम वेयर, सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन से मुझे मिला है y की वैल्यू. तो अगर मैंने पहले सेकेंड इक्वेशन यूज किया है ना, नाउ आई विल बी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन. पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. सो x माइनस, देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब मैंने लिख लिया x माइनस, इस y की जगह पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं. क्यों लगा रहा हूँ ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये चेंज करेगा साइंस को बाद में. x माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 4 माइनस 2x, x माइनस 4 माइनस 2x. समझ रहे हो ना, y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू व्हाट, इक्वल्स टू 3. ओके, सो दैट मीन्स नाउ x, नाउ दिस ब्रैकेट आई विल ओपन, ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं. सो माइनस 4, देन माइनस माइनस इट विल बी प्लस 2x इक्वल टू 3. ओके, so this will be x plus 2x, कितना हो गया, 3x, and this minus 4 it will go to the right side, so minus 4 will be what, plus 4. So plus 4 plus 3, how much I am getting, 7. So x will be equal to what, it is 7 by 3. This is the value of x I am getting, 7 by 3. Okay, now I will put the same value x equal to 7 by 3 in this equation. जो हमें जहाँ से y की वैल्यू मिल रही थी ना, ये थर्ड इक्वेशन ले लो, इसको थर्ड, इसमें पुट कर दो. थर्ड में x की वैल्यू जो भी आई है तुम्हारी, ठीक है, तो x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 7 बाई 3. सो इट विल बी y इक्वल्स टू 4 माइनस 7 टू जा 14 अपॉन 3, एंड देन y विल बी, एलसीएम लो इधर, तो एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3, दिस इज द एलसीएम, देन 3 4 जा 12 and minus 14. So y we are getting is what, minus 2 by 3. This is the value of y we are getting, and x is 7 by 3. So these are the two values we are getting, x 7 by 3, y minus 2 by 3. अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं ना, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, सेकेंड इक्वेशन को लिया था. आई हैव टेकन दिस सेकेंड इक्वेशन, देन फ्रॉम दिस सेकेंड इक्वेशन आई हैव सब्स्टिट्यूटेड. देखो यहाँ से मैंने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया,
ऐसा नहीं करना है कि सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू को तुमने लिया और पुट भी सेकंड में कर दिया। देखो मैंने सेकंड को यूज करके y फाइंड आउट किया, देन आई एम पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन। समझ रहे हो ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जिस इक्वेशन से लिया उसी में पुट कर दिया। हाँ, तो देखो एक और ले लेते हैं, सिंपल सा ही लेते हैं चलो। x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इससे मैं x की वैल्यू लूँगा और सेकंड में पुट कर दूँगा। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस वाई, ये y इधर आके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब इसमें क्या होगा ना, देखो जब मैं इसको पुट करूँगा सेकेंड इक्वेशन में, ये वाली वैल्यू जो आई है ना मेरी, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू फाइंड आउट की है, फर्स्ट से की है, तो पुट किस में करूँगा मैं, सेकेंड में। सो इन प्लेस ऑफ x, x की जगह पे यहाँ पे क्या रखूँगा, 4 प्लस वाई प्लस, देखो ये x की जगह पे मैंने क्या रखा, 4 प्लस वाई, और एक y ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको भी लिखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा और y प्लस वाई कितना हो गया, 2y इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना बचेगा, 2। सो y इज हाउ मच, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1। नाउ यू कैन पुट y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, देखो इसमें ये जो है ना हमारे पास x इक्वल टू 4 प्लस वाई, सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 प्लस 1, 5। अच्छा देखो अभी हमने ना 3 मेथड सीख लिए जो आज की क्लास में। पहला था हमारा ग्राफिकल, सेकंड एलिमिनेशन, ठीक है, ग्राफिकल वाला किया, एलिमिनेशन वाला किया और सब्स्टिट्यूशन किया। देखो हमेशा ना एलिमिनेशन ही यूज करना, इट इज़ द सिंपलेस्ट वन, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एलिमिनेशन को ही करना। सब्स्टिट्यूशन देखो, ग्राफिकल तो मैंने बताया, ग्राफिकल इसलिए यूज मत करना क्योंकि कई बार फ्रैक्शन और डेसिमल्स में गड़बड़ हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन को क्यों यूज नहीं करना है, अब तुम लोग सोचोगे कि सर सब्स्टिट्यूशन तो सिंपल ही है, इसमें तो एक की वैल्यू फाइंड आउट करके कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होगा, इक्वेशन दे देंगे इस तरह से, देखो एक एग्जांपल 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, ठीक है, एंड 7x माइनस 5y इक्वल टू 13, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन अगर तुम्हारे पास आ गई, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इफ़ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से अगर फाइंड आउट करते हो, देन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू विल गेट, 3x विल बी इक्वल टू 11 प्लस 2y एंड देन x विल बी इक्वल टू 11 प्लस 2y अपॉन 3। नाउ इफ़ यू विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर x की तुम सब्सटीट्यूट करोगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड में मीन्स इस वाले में, ठीक है, तो क्या तुम्हें ईजिली सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, नो। सो दैट इज वाई एलिमिनेशन इज बेस्ट, ट्राई टू यूज दैट वन।